Good morning, students. Today we will discuss about the next cell organelle, mitochondria. Mitochondria, it is also called powerhouse of cell. Each cell requires energy, and this energy is produced in the mitochondria. Yes, each cell require energy for performing their function, and for performing their function, it require energy, and this energy is produced in the mitochondria. Under the electron microscope, mitochondria is seen as a double membrane structure. Yes, if you see in an electron microscope, mitochondria, that it is the structure of mitochondria. It looks like, and it is a double membrane structure. The outer membrane is porous and the inner membrane is deeply folded. Yes, outer membrane of mitochondria is porous. Porous means pores are present in outer membrane of mitochondria, and in inner membrane is folded. Yes, this is the folded region, and this is the inner membrane, and the inner membrane is deeply folded. These fold are called cristae, and this fold inner membrane is folded, and this folded membrane is called cristae. Yes, the inner cavity is filled with proteinaceous gel-like matrix. Yes, this is the inner membrane, and this inner membrane inner cavity is filled with proteinaceous gel-like matrix. Filled with proteinaceous gel-like matrix contain ribosome, phosphate granule, and DNA. And in this matrix, it contain ribosomes, phosphate granules, and DNA. Therefore, it can produce its own protein. So therefore it can produce its own protein because ribosome, phosphate granules, and DNA is present. With the help of enzyme, mitochondria oxidize carbohydrate and fats in the cell. Yes, so with the help of enzyme, mitochondria oxidize carbohydrate and fats in the cell, and the energy released in this process is stored in the mitochondria in the form of ATP. Yes, with the help of enzyme, mitochondria oxidize carbohydrate and fat, and this process, oxidation of carbohydrate and fat, energy is released, and this energy is stored in mitochondria in the form of ATP. ATP means adenosine triphosphate. Plant cell have less mitochondria than animal cell. Yes, as compared to animal cell, plant cell have less mitochondria. Function: to produce energy rich compound ATP. This is the most important function of mitochondria. It produces energy rich compound ATP. So therefore it is also called powerhouse of cell, because it produces energy for cell, and energy rich compound ATP it produces. Synthesis of protein, carbohydrate, lipid, etc. And with the help of ATP, synthesis of protein, carbohydrate, and lipid are also synthesized. Now next cell organelle, vacuoles. Vacuoles are the storage sac for solid or liquid content. They don't have any typical shape or size. It means that the vacuole is the sac, storage sac for solid or liquid content, and they don't have any typical shape or size. The structure of vacuole change according to the need of the cell. Vacuole is bounded by single membrane. Functions: to maintain the osmotic pressure of the cell. Yes, to store metabolic byproduct and end product, glycogen, protein, water, etc. In animal cell, they store waste product and food, while in amoeba it store food before digestion. It means as the main function of vacuole in animal cell, they store waste product and food, and while in amoeba it stored food before digestion. In plant cell, vacuole are full of cell sap and provide turgidity, rigidity to them. It means in plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity, rigidity to them. Turgidity means जब वो कोई भी
ग्रेन्स होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते और स्वेलअप हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी. एंड रिजिडिटी मीन्स वाटर, टर्जिडिटी में वाटर गो इन एंड रिजिडिटी वाटर गो आउट. मीन्स वो ड्राई सीड्स हो गए और इसमें ड्राई सीड वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी. नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल प्लास्टिड. Why are plant leaves green and flower red, yellow, orange और blue? यस, आपने देखा होगा प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, फ्लावर रेड होता है, उसके अलावा येलो, ऑरेंज या ब्लू कलर के वेरियस डिफरेंट कलर के फ्लावर रहते हैं. तो किस वजह से रहते हैं? तो ऑर्गेनिल विच गिव सच कलर इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. तो इस टाइप के जो कलर है वो प्लांट में ही रह सकते हैं. तो इट इज कॉल्ड प्लास्टिड. प्लास्टिड और डबल मेम्ब्रेन एंड आर ऑफ टू टाइप. तो जो प्लास्टिड होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है और टू टाइप होता है. प्लास्टिड की वजह से ही हमको प्लांट में अलग अलग लीव्स के और फ्लावर के डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं. तो अब यहाँ पे कलर ऑफ द प्लांट पार्ट का कलर दिया है और उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो दिया है. तो ग्रीन एग्जाम्पल लीव्स, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा. ऑरेंज है एग्जाम्पल कैरोटीन प्रेजेंट होगा. येलो के लिए जेंथोफिल. मतलब प्लास्टिड पिगमेंट है ये अलग अलग, जिसकी वजह से अलग अलग कलर हमको मिलते हैं. पर्पल ब्लू एंथोसाइनाइन. डार्क पिंक एग्जाम्पल बीटा लेंस. यस. अब उसके बाद देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट. वाइट और कलरलेस प्लास्टिड. जो वाइट कलर होता है या कलरलेस पार्ट रहता है तो वो उसमें क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं. क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है. तो क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट. तो जो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट, उसके और भी टाइप्स होते हैं. एग्जाम्पल रॉ ग्रीन टोमेटो टर्न रेड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस ऑफ लाइकोपीन. तो यस, जो ग्रीन टोमेटो होता है उसमें क्लोरोफिल रहता है, लेकिन बाद में जब वो रॉ ग्रीन टोमेटो टर्न रेड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस ऑफ. क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन होता है और लाइकोपिन का सिंथेसिस होता है, जिस वजह से हमको जो रॉ ग्रीन टोमेटो से वो रेड दिखाई देते हैं जब वो राइप हो जाते हैं. तो अभी हम क्लोरोप्लास्ट देखेंगे. एक्टिविटी. टेक आउट अ थीन पील ऑफ रिहो और क्रोटन लीफ एंड ऑब्जर्व द क्रोमोप्लास्ट अंडर द कंपाउंड. कोई भी एक लीफ लेंगे ग्रीन वाली और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे. तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटो. यस, जो क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको इस टाइप से दिखाई देता है. इसमें स्ट्रोमा होते हैं, ग्रैनम होते हैं, थाइलोकॉइड प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक इनर मेम्ब्रेन स्पेस है. तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. यस, यू नो वेल photosynthesis. With the help of photosynthesis plant prepare their food. So for photosynthesis chloroplast are important. Chloroplast are with the help, it means that the chloroplast is very important for photosynthesis. If chloroplast is not present, photosynthesis process is not done. Process that take place in the leaf. Chlorophyll in chloroplast ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इन द केमिकल. तो ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में, उसका फंक्शन क्या होता है? क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और इट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और उस लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम डीएनए. उसके अलावा ये जो स्ट्रोमा होते हैं वो क्या करते हैं? कंटेन एंजाइम. इनमें डीएनए, इनमें क्या रहता है? एंजाइम रहता है, डीएनए रहते हैं, राइबोसोम्स एंड कार्बोहाइड्रेट दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. उसके अलावा ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर है वो भी प्रेजेंट होता है. फंक्शन देखेंगे. क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को फूड बनाता है. क्लोरोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स. फ्लावर और फ्रूट को डिफरेंट कलर देता है. थर्ड, ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन.
ये सब क्या इसके फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कैन प्रोड्यूस प्रोटीन एज वेल एज रिप्लिकेट देमसेल्फ एंड दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइब। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होते हैं वो खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा वो रेप्लिकेट भी होते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई होते हैं, एंड दे हैव देयर ओन डीएनए, और उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। आफ्टर स्टडिंग द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल यू मस्ट हैव कम टू नो दैट ऑल द function in plant and animal cells are taking place smoothly due to the cell organelle. As such developed cell are called eukaryotic cell. Last year you have studied prokaryotic cell of bacteria. Yes, तो ये क्या पूरे हमने ऑर्गेनिल को डिस्कस किए, तो हमको पता चला कि कौन से ऑर्गेनिल का क्या फंक्शन है, और जिस सेल में ये पूरे ऑर्गेनिल प्रेजेंट होते हैं उन सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो ऑल सेल ऑर्गेनिल आर, और उसके हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया, इसमें ऑल सेल ऑर्गेनिल